NCERT optional exercise. Question number 1. Which term of the AP 121, 117, 113 is the first negative term? Listen. अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछो तो क्या करना है? What is the nth term of the AP? An. है ना? An is the nth term of the AP. That is A plus n minus 1 into D. Here what is A? 121. What is D? 117 minus 121. That is equal to minus 4. Is it clear? Clear? अब बताओ. A is equal to 121, D is equal to 117. D is equal to 117 minus 121, that is equal to minus 4. Which term is the first negative term पूछा था क्वेश्चन में. इस सीरीज का फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है? देखो 113. नेक्स्ट कितना आएगा इसमें? 109. कम करते एक फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा. ये कॉन्सेप्ट है, ये फाइंड करना है. इसके लिए क्या करना है आपको? अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा तो क्या करना है? n लेस देन 0. और फर्स्ट पॉजिटिव टर्म पूछा तो ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव टर्म पूछा तो लेस देन 0. और फर्स्ट विच टर्म इज द 0, विच टर्म इज 0 तो n इक्वल टू 0 पुट कर दो. विच टर्म इज 0 पूछा तो n इक्वल टू 0. Which term is the first negative term? An less than 0. Which term is the first positive term? An greater than 0. An greater than 0. Clear है? Clear? So इसमें an की वैल्यू क्या? A plus n minus 1 into D less than 0. What is A? Plus n minus 1 D less than 0. 121 minus 4n plus 4 less than 0. 125 less than minus 4n इधर शिफ्ट कर दो. देखो ओपन साइड किधर है? 4n है. इसका मतलब 4n ग्रेटर देन 4n इज ग्रेटर देन. एक ही बात है नहीं. देखो ओपन साइड 4n किधर है? ओपन साइड 4n की. ओपन साइड कौन सा? देखो a बड़ा है, सो 4n इज ग्रेटर. ये स्मॉल है तो ये 125 स्मॉल है. क्लियर है? ठीक है. सो n ग्रेटर देन 125 डिवाइड बाय 4. n ग्रेटर देन डिवाइड किया तो 3 1 पॉइंट 31.25. तो n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में पॉसिबल नहीं है और नेगेटिव भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. तो 31.25 से ग्रेटर n की वैल्यू. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? सो n इज इक्वल टू, so which is the first negative term? 32nd term is the first negative term. लिख दो. Therefore 32nd term is the first negative term. 32nd term is the first negative term. NCERT question number 2. The sum of the third and seventh term of an AP, the sum of the third
and the seventh term of an AP is 6, and the product is 8, and the product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. 16 terms of the AP. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? The sum of the third and the seventh term. क्या गिवन है? A3 plus A7. So A3, first write in symbolic form. A3 plus A7 is equal to कितना? 6. What is A3 formula? A plus 2D plus A plus 6D equal to 6. 2A plus 8D is equal to 6. सबको 2 से डिवाइड कर दो. A plus 4D is equal to 3. 2 कॉमन करके 3 से कैंसिल किया, या तो 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है. क्लियर? और इनमें से एक की वैल्यू फाइंड कर सकते. व्हाट इज ए? 3 minus 4D. इक्वेशन 1. जब तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? A is equal to 3 minus 4D. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था इसमें? नॉटिसन मत करना. A3 प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट A3 into A7 equal to A. What is A3? A plus 2D into A plus 6D is equal to 8. इतना क्लियर है सबको? Any doubts? Okay. What is A? 3 minus 4D plus 2D. देखो A की जगह 3 minus 4D है, वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 2D ऐसे लिख दिया. क्लियर? और इधर A की वैल्यू 3 minus 4D plus equal to 8. जब तक क्लियर है? और अब देखो 3 minus 4D plus 2D minus 2D. 3 minus 2D. इधर 3 minus 4D plus 6D equal to 8. ये सेम है, बट A plus B minus B. A square minus B square. 3 का स्क्वायर माइनस इक्वल टू 8. शिफ्ट कर दो. 9 minus 8 equal to, what is 9 minus 8? 1 equal to 1 equal to 4D squared. What is D square? 1 by 4. D is equal to plus or minus 1 by 4. What is D? प्लस और माइनस 2 सेट आंसर आएगा इसमें. 2 सेट आंसर आएगा. देखो मत करो. लिसन. फर्स्ट सेट, when D equal to 1 by 2. D is equal to 1 by 2. What is value of A? What is A? So 3 minus 4 into 1 by 2. A is equal to 3 minus 2 equal to 1. फिर Sn equal to क्या फॉर्मूला है? n by 2 2A plus n minus 1 into D. S n की वैल्यू क्या है? 16. n की वैल्यू 16. n equal to sum of the 16 terms. ये कितना है? 16 by 2. 2 into A 1. 2 into 1 2 plus 16 minus 1 D. So 16 by 2 8. LCM for 2 into 2 plus 15 into 1 divided by 2. 2 is a cancel. 4 into 90 70
6 एक सम कितना आ रहा है 76 क्लियर है एक और सेट आंसर आएगा इसमें कब आएगा कौन से वैल्यू में when d is equal to minus 1 by 2 सही एक ही वैल्यू क्या होगा 3 minus 4 into minus 1 by 2 3 plus 2 what is 3 plus 2 5 so S16 equal to 16 by 2 2 into A 5 16 minus 1 15 D minus 1 by 2 8 क्या आएगा 10 minus 15 by 2 8 into 20 minus 15 5 by 2 2 कैंसिल करके 20 so दूसरा सम कितना आएगा 20 so आंसर इज 76 and 20 76 और 20 क्लियर है 76 और 20 क्वेश्चन नंबर 3 question number 3 NCERT optional exercise question number 3 a ladder has rungs 25 centimeter apart 25 centimeter apart the rungs decrease uniformly the rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 1 by 2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? What is the length of the wood required for the rungs? ये क्वेश्चन पूछो ठीक है listen close a copy and listen here पहले लॉजिक देखो क्वेश्चन a ladder these are the rungs okay so this is the lowest rungs and the length of this rung is 45 centimeter the length of this rung is 45 centimeter while moving upward the length of the rung increase होगा decrease होगा decrease the length of the rung decrease होगा देखो ये हो गई ये भी हो गई बीच में बहुत है ना इस तरह से बहुत है सबसे टॉप मोस्ट जो रंग है उसका हाइट भी क्यों ना क्वेश्चन में कितना है 25 सेंटी इसके बीच में भी है बहुत है आपको पता नहीं है कितना है ठीक है और इधर से the topmost rung the length between the topmost rung and the bottommost rung is equal to 1 by 2 मीटर है ना 1 by 2 मीटर का मतलब है 5 by 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 by 2 into 100 that is equal to 250 centimeter so total length में
ऊपर से नीचे सबसे, है ना, लेंथ कितना है 250 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है, क्लियर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रैंक्स गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इसका भी कितना है 25, इसका भी कितना है 25, सबका 25 25 25, इसका लेंथ तो 45, उसका लेंथ और कम होगा, इसका और कम होगा, कम करके सबसे ऊपर वाला कौन सा है 25 सेंटीमीटर। जब तक क्लियर है सबको? अब देखो इस क्वेश्चन में लॉजिक देखें, देखो मैं 2 लाइन ड्रॉ कर दी इसमें, ठीक है, क्लियर, और इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ओके, कितना सेंटीमीटर है 10। मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके, एंड द लेंथ इज, इसका जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर है, एक का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, एक का लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और कितना ड्रॉ करा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर, इतना तक क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? इतना तक क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? अब देखो मैं इसमें कितना लाइन ड्रॉ किया इधर 1 2 3, अब देखो ये कितना बॉक्सेस फॉर्म होगा, ये फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू, दिस इज बॉक्स है, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू, कितना होगा, टोटल लेंथ कितना है 10 डिवाइड बाय, एक का लेंथ फाइंड कर दो, टोटल कितना लेंथ है इसका डिवाइड बाय एक का लेंथ, दैट इज इक्वल टू 2, देखो 2 बॉक्स होगी। सो नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने के लिए क्या करना आपको, टोटल लेंथ से 1 बॉक्स का जो गैप का लेंथ डिवाइड कर देना, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आएगा, यस और नो? अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 2, कितना लाइन ड्रॉ करना मुझे, सो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू, दिस लाइंस आर कॉल्ड रैंक्स, अगर हम उल्टा किया तो जो लैडर का क्या हो गया, रैंक्स हो गए, सो ये रैंक्स है, नंबर ऑफ रैंक्स कितना होगा इसमें 2 + 1, दैट इज इक्वल टू 3। अब देखो एक लाइन है, मुझे 4 बॉक्सेस बनाना चाहिए, देखो 4 बॉक्सेस 1 2 3 4 5, कितना लाइन ड्रॉ किया मैं 5, तो कितना बॉक्सेस बन गए देखो 1 2 3 4, सो 4 बॉक्सेस के लिए कितना लाइन ड्रॉ किया मैं 5। कंसेप्ट क्लियर है सबको? क्लियर है? अगर 4 बॉक्सेस मिलने के लिए कितना लाइंस ड्रॉ करना है 5, क्लियर है? 4 बॉक्सेस ड्रॉ करने कितना लाइंस ड्रॉ करना है 5। द सेम है, देखो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना फॉर्म होगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस 250 डिवाइड बाय 25 10, बट नंबर ऑफ रैंक्स कितना होगा +1 करने में, है ना 11, सो नंबर ऑफ रैंक्स इज इक्वल टू, कंसेप्ट क्लियर है, नंबर ऑफ रैंक्स in bracket n is equal to 250 divided by 25 plus 1। 250 divided by 25 क्या चीज होगा, बॉक्सेस होगा, ये 1 2 3, कितना बॉक्सेस होगा 10। 10 बॉक्सेस ड्रॉ करने कितना लाइन ड्रॉ करना है 11 है, इसलिए +1 कर दिया, समझ के +1 क्यों किया, क्लियर है कंसेप्ट? सो नंबर ऑफ रैंक्स चाहिए हमको, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 + 1 इज इक्वल टू, सो ये 11 हो गई। सबसे लोअर मोस्ट कितना है, इसका लेंथ कितना है 45, सो व्हाट इज ए, ये कौन सा होगा, सो 25 क्या है एन, और यूनिट बाद में लिखना, ठीक है 25, क्लियर, और एन कितना है
11। हम क्या पूछा था क्वेश्चन में? टोटल लेंथ ऑफ द रैंक्स पूछा था। टोटल लेंथ ऑफ द रैंक्स तो क्या फाइंड करना है? एसएन। सो एसएन का फॉर्मूला क्या है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें? n/2 a प्लस ए। इसमें एस एन, एन का मतलब क्या? 11। क्या आएगा? 11/2 a 45 प्लस 25, that is 11/2 45 plus 25 70, एक कैंसिल है 35 385 centimeter. What is the total length of the rungs? 385 centimeter. The third clear? Any doubt? Note करो. +1 ऐड क्यों किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है. क्लियर है सबको? क्लियर है? रीजन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x, this एक house number है x, such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find the value of x. Find the value of x. Pen down. Pen down and listen to your question. ये क्वेश्चन करने के लिए लॉजिक समझ में आना चाहिए. लिसन, एक्स एग्जाम्पल बताओ मैं. लिसन, 1 प्लस 2 प्लस 3 में 1 to 10 तक नंबर ऐड करना. इस एन एपी, इस एन एपी. ध्यान से देखो, ये लॉजिक तोड़ना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगा. ठीक है? अभी आगे भी कुछ क्वेश्चन है इसी लॉजिक का बेस. जब फॉर्मूला लिखता है ना एसएन का, एसएन इक्वल टू क्या फॉर्मूला? n/2 2a प्लस और a प्लस एन, कोई भी एक फॉर्मूला है. बट एसएन लिखते हैं ना, उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए. एसएन का मीनिंग क्या है? सम ऑफ द, ऐसे मत बोलना, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ द स्टार्टिंग्स होना चाहिए. सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म मीन्स अगर मुझे इधर से 1 to 5 तक ऐड करना, ये स्टार्टिंग से ऐड करा ना मैं, इसको हाउ टू राइट दिस? S5 लिख सकते. देखो 1 2 3 4 5 नंबर्स का एडिशन है, बट कैसे स्टार्ट है? फर्स्ट स्टार्ट है. सम, इसका मतलब क्या? सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स. अब मुझे इस सबका ऐड करना है. इधर कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5. क्या लेना चाहिए? S5. S5 का मीनिंग क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स. ये फर्स्ट 5 नंबर है, ये बीच का नंबर है ना.
फर्स्ट 5 नंबर तो नहीं है, तो ये लिख सकते हैं? ये नहीं लिख सकते आपको। ये सीरीज में फर्स्ट नंबर किधर से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। सुन रहे तुमको? अगर मुझे इसको ऐड करना, मुझे इधर से इधर तक ऐड करने के लिए क्या करना आपको? देखो ये लिखने का तरीका देखो, पहले ये पूरा का सम लिख सकते हैं। इधर से इधर तक हाउ टू राइट? S10 लिख सकते हैं, यस और नो? S10 से इतना माइनस किया तो ये आंसर आएगा। इधर से इधर तक कितना है? S5। तो S10 से S5 माइनस किया तो द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स आएगा, यस और नो? ये कंसेप्ट क्लियर है? यस और नो? क्लियर? सो आगे वाला फाइंड करने के लिए ये कंसेप्ट अप्लाई करना आपको। कोई भी सीरीज ऐसे देखो, ये एक सीरीज है 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इधर से स्टार्टिंग है। हाउ टू राइट दिस? S5 लिख सकते हैं। क्यों? स्टार्टिंग 6 से, स्टार्टिंग 6 से, ये 1 से स्टार्ट है, ये 6 से स्टार्ट है। सुनवा रहे? ये S5 लिख सकते हैं क्योंकि 6 से स्टार्ट। देखो स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5, S5 लिख सकते हैं, ऐसा हो रहा। बट इसमें नहीं लिख सकते, इधर स्टार्टिंग इधर से 1 से, तो S5 है, SN है, कुछ भी है। इसका मीनिंग क्या है? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, 5 टर्म्स, 10 टर्म्स एक्सेट्रा। ये कंसेप्ट क्लियर है? क्लियर? ये कंसेप्ट यूज करके हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो हियर हाउसेस, हाउस नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। लास्ट में एक हाउस नंबर कौन सा है? 49। ये हाउस नंबर कौन? 1 2 3 4। इधर तक क्लियर है सबको? अब क्वेश्चन में गिवन है एक हाउस नंबर है, इसके बीच में 1 और 49 के बीच में एक नंबर है गिवन है। कितना वैल्यू है? क्या गिवन है? 1 to 49 तक कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर 2 से 48 तक कोई भी नंबर हो सकता है। बट ये अननोन नंबर है। कितना गिवन है क्वेश्चन में? x। ये x, दिस इज हाउस नंबर x। अगर x है, इसका पराना नंबर कौन सा होगा? ये नंबर कौन सा होगा? x माइनस 1। आगे वाला कौन सा होगा? प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हम नहीं लिख सकते। क्यों? x प्लस 2x, पूरे x का टर्म आएगा ना। ये सिर्फ लास्ट नंबर पता है वो कौन सा है? 49। ये भी पता है हमको 1 2 3 4 5, बीच में एक नंबर है कौन सा? x। क्लियर है? और x के पहले वाला कौन सा नंबर है? x के बाद वाला कौन सा नंबर है? इधर तक क्लियर है सबको? अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द सम ऑफ द houses means the sum of the number of the houses preceding the house number x. This is the house number x. Preceding का मतलब क्या? इधर तक सम करना आपको, यह सबका सम करना है। ये नंबर का किधर से किधर तक सम करना है? 1 से x माइनस 1 तक नंबर है, उसका सम फाइंड करना है। किधर से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। तो हाउ टू राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म दिस? s x माइनस 1 लिख सकते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट x माइनस 1 नंबर। x माइनस 1 क्यों? x माइनस 1 तक सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर x। प्रिसीडिंग का मतलब इधर तक, ये सम इधर से पीछे। क्लियर है? क्लियर? ये s लिख सकते क्यों? स्टार्टिंग से। इज इक्वल टू क्या गिवन क्वेश्चन में? द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। x को बाद वाला जो नंबर है ना हाउस का, उसका इधर से इसका सम है। अब इसको लिख सकता है, इसका S49 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? आगे वाला है, स्टार्टिंग में नहीं है, है ना। हाउ टू राइट दिस? देखो इसका सम फाइंड करने के लिए इधर इतना तक सम फाइंड करने के लिए, इतना तक सम फाइंड करने पहले क्या करना आपको? ये पूरा में से है ना, ये पूरा कितना है?
ये पूरा S49। सो इधर तक सम माइनस करना है। देखो ये पूरा में से इधर तक जो सम माइनस किया तो ये आंसर आएगा। सुनो क्लियर? मीन्स बाद वाला नंबर का सम फाइंड करने के लिए मैं पूरा फाइंड किया S49, इनमें से इधर तक माइनस किया तो बाद वाला का सम आएगा। इधर से इधर तक क्या सम है? 1 to x, क्या लिख सकते हैं? S x, क्या करना है? माइनस। क्लियर? इधर से इधर तक कितना नंबर है? 49, S49 लिख दिया। और इधर से इधर तक कितना नंबर है? x, SX लिख दिया। और ये पूरा में से इधर तक माइनस किया तो सम, बाद वाला सम आएगा। अभी जो किया था मैं 10 वाला नंबर है, इसमें 5 वाला माइनस किया तो आगे वाला नंबर का सम आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो पूरा में से सम से 1 से 49 जो सम है, इनमें से 1 to x तक सम माइनस किया। इसका मतलब S49 माइनस SX। S लेने के लिए हमेशा क्या चाहिए? फर्स्ट से स्टार्ट करना। कोई भी सीरीज क्यों है उसका फर्स्ट से स्टार्ट करना है, उसका फर्स्ट से स्टार्ट करना है। क्लियर? ठीक है। सो SX माइनस 1 इधर से इधर तक, ये दिया था क्वेश्चन में। इसके बाद इसका सम फाइंड करने के लिए क्या करना आपको? पहले ये पूरा का सम, ये पूरा का सम कितना है? S49। फिर ये पूरा में से क्या माइनस करना आपको? ये माइनस करना इधर तक, तो बाद वाला ना सम आएगा। सुनो, ठीक है? क्लियर? अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये दोनों सम इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SX minus 1 is equal to S49 minus SX। ये गिवन है क्वेश्चन में। जरा अब SX को इधर शिफ्ट कर दो, SX minus 1 प्लस SX इक्वल टू, ये सोल्व करने का तरीका देखो, कोई मल्टीप्लिकेशन जरूरत नहीं है, लास्ट में सिंबल है कि कैलकुलेशन है। देखो कैसे करना है। What is the meaning of Sn? n by 2, 2a plus n minus 1d। इधर x के नीचे क्या टर्म है? So a क्या वैल्यू है? n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू n by 2। What is n? So x minus 1 by 2। 2 into a, what is a? 1, 2 into 1, 2 plus n x minus 1 minus 1, n minus 1, ये n है ना, ये n है, minus 1 into d 1, d is also 1 plus sx। देखो इधर x है तो n की वैल्यू क्या है? x by 2, 2 into a 1 plus n x into d 1, 2 minus 1 1 है, d तो 1 है। इस सीरीज का डी कितना है? 1 है। इक्वल टू S49, 49 by 2, 2 प्लस 48 इंटू डी, डी की वैल्यू 1 है। 49 माइनस 1 कितना है? 48। ये आ गई। अब देखो ये सम में क्या नीचे 2 कैंसिल कर सकते हैं। देखो राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों कॉमन करके कैंसिल कर सकता है। सुन रहा हूं? कैंसिल करने के बाद बताओ क्या हुआ? x माइनस 1 इंटू, इधर आएगा ब्रैकेट में 2 प्लस x माइनस 2। देखो माइनस 1 प्लस x बाई 2 तो कैंसिल कर दिया। देखिए होगा 2 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 49 इंटू 50। ये भी क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट x minus 1, 2 2, so x इधर 2 minus 1 1 equal to 49 into 50। x into x minus x into x plus equal to, मल्टीप्लाई मत करना, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, x
2x squared is equal to 49 into 50. X squared is equal to 49 into 25. 2 से cancel करके 25. So what is x? Plus or minus, but minus तो लेने की जरूरत नहीं है. क्यों? 1 और 49 के बीच में हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होगा, इसलिए मैं माइनस नहीं लेने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? सो इधर क्या होगा ना, 49 into 25. x is equal to square root of 49, 25 का 5. So what is x? What is the house number? x 35. 35. इसका मतलब 1 से 34 तक नंबर ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू 36 से 49 तक नंबर ऐड कर दो, इस बराबर होगा. ठीक है, ये नंबर आपका हमेशा इक्वल होगा. बताओ क्लियर? चलिए a small terrace at a football ground consists of 15 steps. 15 steps. So what is n? 15. Okay. Each step, which is 50 meter long, what is the width of the steps? 50. And built of concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and tread of 1/2 meter. tread का मतलब है ये स्टेप है, ये स्टेप ऐसे होते हैं स्टेप, फिर ऐसे होते हैं ऊपर ऊपर जाते हैं. ये कितना है? 50. और ब्रेड्थ कितना है? ट्रेड कितना है? ट्रेड 1/2 मीटर. और इसका राइज कितना हाइट है? 1/4. एक स्टेप्स का हाइट है 1/4, इसमें से आएगा स्टेप्स. ऐसे जाते हैं स्टेप्स, ये होते स्टेप्स, ऐसे जाते स्टेप्स. ठीक है, और इसका जो विड्थ है कितना है? L. फर्स्ट आइटम वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्टेप. Volume of first step कितना है? वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्टेप L इंटू क्यूबॉर्ड है ना, B इंटू H. व्हाट इज L? 50. ब्रेड्थ को ट्रेड कितना, लेंथ कितना? 1/2. हाइट कितना है? 1/4. 50/8 मीटर क्यूब. फ्रैक्शन में छोड़ दो, कैंसिल नहीं करना. ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप. ये 50 तो चेंज नहीं होगा, 1/2 चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा? हाइट. देखो सेकंड, ये फर्स्ट हाइट है, उसका स्टेप कितना, हाइट कितना है? 1/4. और जो सेकंड स्टेप है इधर से ऊपर कितना हाइट होगा? 1/4 प्लस 1/4 2/4. 1/4 प्लस अगेन 1/4, दैट इज 2/4. कितना आएगा फिर? 2/2 इंटू 50 100/8. फिर आई डोंट, टोटल डी की वैल्यू क्या होगा इसमें? डी 100/8 माइनस 50/8, that is equal to 50/8. Therefore, total volume of the concrete required, total volume of concrete required is equal to SN का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला N/2 2A plus N-1 into D. What is N? What is N? 15/2. A 2 into 50/8. ये आएगा 14 into D 50/8. ये आएगा 15/2
100/8 कैंसिल मत करना, ठीक है। 700 डिवाइड बाई 8, 15/2, 800 डिवाइड बाई 8, ये आएगा 15/2 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 2 से 100 से कैंसिल है, 750 मीटर क्यूब. The total volume of the concrete required to construct the step is equal to 750 meter cube.